class of Indian Contract Act 1872. Here I am with another new topic from this act, that is proposal. What is proposal in terms of contract? And here you will see the intention of parties to create a legal relationship. प्रपोजल का मतलब ही होता है कि आप इस इंटेंशन से आते हो टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द अदर एंड यू, between both the parties. That is proposal. Simply telling your wish or will to another person without taking the intention कि आप उस person की इसमें acceptance चाह रहे हो, that is not a proposal. Proposal is when you come with your wish or your idea against the same thing कि आप next person की acceptance भी उसी में चाह रहे हो in same terms. That is a proposal. Right, my dear students? And here I'm also giving you a very good news that recently we started a Telegram account and there you can follow us. Telegram पर आपको सारे sessions की PDF हम available करवा रहे हैं, so go and follow there. And also this Telegram link I have provided in the description. You can follow us from there. So without wasting time, let's start this session. In order to form a valid agreement, अगर आपको एक valid agreement create करना है, after acceptance, a proposal has to be made with the intention to create a legal relationship. Means आपके mind में ये होना चाहिए कि आप another party के साथ एक legal relation में आ रहे हो, legal relationship create हो रही है कि if the other party बीच में contract छोड़कर जाती है तो आप उसको legally claim करवा सकते हो. That is what legal relationship is. Like here I'm telling you, as I told, कि आपकी कोई simple wish है या आपका मन कर रहा है, like intention at the time of proposal जो है वो material करती है. Like आपने बोला किसी दूसरे person को आओ walk पर चलते हैं, let's go for a walk, and other person also agrees. Here there is no intention आपके mind में कि मेरे को इसको legal relationship में लेना. अगर ये मेरे साथ walk पर नहीं गया, I can claim this in the court. मैं इसको court में लेकर जाऊँगा और I will file a case on him. That is not. Okay, so या फिर if you are making a plan with your friends to go for a movie, that is also not an agreement. Simply that is not a proposal. So if there is no intention to create a legal relationship, कोई आपकी intention ऐसी है ही नहीं, तो वो proposal नहीं होता है. Okay, my dear students, proposal के लिए necessary है कि आपकी intention होनी चाहिए कि आप उस person के साथ एक legal relation में आ रहे हो. आपको ये बहुत easy clear होगा in this case, and I think every one of you must have read this somewhere, Balfour versus Balfour. बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है. जब आप कोई भी एग्जाम देकर आते हो, लाइक योर LLB एग्जाम्स, जहाँ पर आपके थ्रू पूरा एग्जाम आपको एक क्वेश्चन लिखना होता है, तो वहाँ पर आपको बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर का केस मेंशन करना ही है जहाँ पर प्रपोजल की बात हो रही है. एंड समटाइम्स क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है कि इन कंटेक्स्ट ऑफ बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर टेल द लीगल कंडीशंस ऑफ प्रपोजल, या वो मस्ट कंडीशंस बताइए जो एक प्रपोजल की होनी चाहिए. तो आपको ये केस हमेशा माइंड में रखना है, माय डियर स्टूडेंट्स. आई एम टेलिंग अगेन दैट बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर. तो इस केस को आइए अच्छे से डिस्कस करते हैं. इसमें क्या था, यहाँ पर जो इंटेंशन होती है लीगल रिलेशन में आने की, इट्स फाउंड टू बी इम्प्लाइड. यहाँ पर क्या है, डिफेंडेंट जो है, he is a husband, he is employed in salon, right, and he had promised to send 30 pounds to his wife. अपनी वाइफ को भेजता है, जो कि वाइफ इस केस में क्या है, प्लेंटिव. तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में ये केस है. हस्बैंड इज डिफेंडेंट एंड वाइफ इज प्लेंटिव. प्लेंटिव मीन्स जो केस फाइल करेगी लेटर ऑन. तो यहाँ पर वाइफ ने इस हस्बैंड पर केस फाइल किया, पर पहले हम जानते हैं कि इस केस में क्या था कि हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था कि वो अपनी वाइफ को 30 पाउंड्स हमेशा देगा मंथली और समथिंग लाइक दैट. वाई? बिकॉज जो उसकी वाइफ थी वो इंग्लैंड में थी और वो इल थी, बीमार थी, राइट. एंड द हस्बैंड देन फेल टू सेंड द मनी, राइट. नाउ वाइफ स्यूड द सेम. वाइफ ने उस पर केस कर दिया. तो इसमें क्या लगता है आपको, क्या उनके बीच में एक लीगल रिलेशनशिप आ गई थी? जजमेंट क्या आई माय डियर स्टूडेंट्स? इट वाज हेल्ड that agreement in this case was not intending to create a legal relationship.
कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं थी। आपकी वाइफ जस्ट बीमार है और आपने बोला मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेटर ऑन आप ड्यू टू एनी कंडीशंस और आप नहीं भेजते हो, तो वाइफ उस पर केस नहीं कर सकती, बिकॉज देयर वॉज नो इंटेंशन टू क्रिएट इन अ लीगल रिलेशनशिप। आप कोई बिजनेस टर्म्स में नहीं आ रहे और देयर इज नॉट अ कंसिडरेशन फ्रॉम बोथ द साइड्स। सो लीगल रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है यहाँ पर। और अब आप ये मत मान के चलिए कि हस्बैंड वाइफ थे तो लीगल रिलेशनशिप नहीं है, नो। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों एक लीगल टर्म या लीगल रिलेशनशिप में आते हैं। वो आपको हर सिचुएशन टू सिचुएशन आपको पता करना पड़ेगा कि क्या सर्कमस्टांसेस है, राइट। इसलिए मैंने स्पेशली एक और केस दिया ताकि आपको ये समझ में आए। देयर इज नथिंग दैट प्रिवेंट्स अ पर्सन इन अ क्लोज रिलेशनशिप फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ लीगल रिलेशनशिप। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग क्लोज रिलेशनशिप में होते हैं, स्पेशली द फेमिलियर रिलेशंस, वो कभी भी लीगल रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, नेवर, इट्स नॉट लाइक दैट। यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हेयर लाइक देयर वॉज मैरिड वर्सेज मैरिड, ये भी एक हस्बैंड वाइफ का ही केस है। यहाँ पर क्या है, husband and wife were joint owners of a house, right। हाउस के joint owners हैं, जो कि हाउस उन्होंने किस पर दिया है, मोर्टगेज पर दिया हुआ है या लिया हुआ है, मोर्टगेज पर है। husband went to live with another woman and by signing a note agreed to transfer the house property to wife। husband, हाउस दोनों का मोर्टगेज पर है, हस्बैंड कहीं और जाके रहता है और वाइफ को बोलता है कि मैं ये हाउस सारा का सारा तुम्हें ही ट्रांसफर कर दूंगा, बट इफ शी क्लियर ऑल द आउटस्टैंडिंग अमाउंट विद रिस्पेक्ट ऑफ द हाउस, अगर वो हाउस पे जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो सारी क्लियर कर दे तो हस्बैंड फ्री होके उसको ही दे देगा। अब यहाँ पर क्या है, ये दोनों के बीच में एक बिजनेस काइंड ऑफ डीलिंग है, राइट। दे आर कमिंग इन अ लीगल रिलेशनशिप और ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक एग्रीमेंट है। It was held in this case that there was a clear intention to create a legal relationship। अब अगर इनके बीच में कोई एग्रीमेंट बनेगा कि this house will be transferred to wife if she cleared all the outstanding amount in respect of that house, then that is a clear intention कि वो आपस में एक legal relationship बनाना चाह रहे हैं। All right, now अब आपको ये समझ में आ गया कि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना कितना इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट जस्ट अ मेयर टेलिंग अ विश टू अनदर पर्सन, इट्स ऑल्सो लाइक यू आर कमिंग इन अ लीगल रिलेशनशिप एंड टेकिंग द अदर पर्सन एक्सेप्टेंस विद द व्यू कि अगर वो कल वो चीज़ को फॉलो नहीं करेगा तो वो उसको स्यू भी कर सकता है। कंक्लूजन में क्या बोला गया, इट इज़ द इंटेंशन दैट इज मटीरियल, विद वट इंटेंशन you are talking to other person and with what intention you are telling that offer to another person। The intention can be inferred from variety of dash, variety of facts। बहुत सारे facts से आप ये पता कर सकते हो कि किस तरीके की intention आपकी infer हो रही है। But generally in case of social relationships or family relationships, close relationship में क्या होता है, such intention is presumed to be lacking। हमेशा हम ये सोच के चलते हैं कि ऐसी रिलेशन, दो भाइयों के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा या हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा, बट दिस नेवर ट्रू अनलेस आप कुछ चीज़ों को प्रूव ना कर दें। क्या, इंटेंशन मस्ट बी देयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। आपको दोनों की इंटेंशन देखनी होगी। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट मीन्स यू हैव टू स्टडी द फैक्ट्स वेरी केयरफुली, कि आपको केस में समझना होगा कि इनके बीच के फैक्ट्स क्या हैं। कल सपोज इफ़ यू प्रैक्टिस इन द कोर्ट और आपके सामने ऐसे ही कोई केस आ जाए और वो कहें कि ऐसे तो कोई इंटेंशन ही नहीं है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकता, बट आपको उनके जो भी फैक्ट्स होंगे उनको अच्छे से स्टडी करना होगा एंड देन यू हैव टू सी व्हाट वाज देयर इंटेंशन। इंटेंशन एट द टाइम ऑफ डैश इज इम्पॉर्टेंट, एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के टाइम पर क्या दोनों की क्या इंटेंशन थी एट दैट टाइम, दैट इज द क्रूशियल थिंग। राइट माई डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको इस सेशन से अच्छे से ये पता लग गया है कि प्रपोजल कब दिया जाता है एंड प्रपोजल वैलिड कब होता है और ये लीगली वैलिड कब होता है, लीगल टर्म्स में आप इसके इंटेंशन को कैसे क्रिएट करते हो। इन दिस सेशन वी स्टडीड दैट। अगेन टेलिंग यू द सेम थिंग दैट टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, यू कैन फॉलो अस फ्रॉम देयर and there I am sending you or posting all the PDFs of sessions, coming session, so you will get a clear idea from there. Till then, have a good day. I hope you enjoyed the session.